دنیا اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عامر ظفر. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پچھلے چند دنوں میں ہم نے اکانومی سے ریلیٹڈ مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا، جیسے کہ پاکستانی روپے کی قدر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مجموعی قرضے، ہیلتھ سیکٹر ہو یا ایجوکیشن سیکٹر ہو یا اس کے علاوہ دیگر اکانومی کے پہلو، ان پر ہم نے بات کی. اور ان تمام پہلوؤں میں ہم نے ایک چیز بڑی کنسسٹنس دیکھی اور وہ تھی فیلئر. یعنی کہ 1947 سے لے کے آج تک ان تمام سیکٹرز میں یا تو پالیسیز بنی نہیں یا جو پالیسیز بنائی گئیں وہ ہمیشہ سے فیلئر کا شکار رہیں. لیکن آج ہم جس پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں اس میں پاکستان بننے سے لے کر پاکستان نے اگلی 6 دہائیوں تک بہت بہتر پرفارم کیا، اور یہ سیکٹر ہے پر کیپٹا انکم، یعنی کہ فی کس آمدنی کا. سادہ لفظوں میں فی کس آمدنی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ہر ایک شخص سالانہ کتنے روپے کماتا ہے، اسے فی کس آمدنی کہا جاتا ہے. 1947 میں پاکستان کی جو فی کس آمدنی تھی وہ انڈیا سے زیادہ تھی. پھر 1980 تک پاکستان اس خطے میں مضبوط ترین معیشتوں میں شمار ہوتا تھا. پھر وقت گزرا اور ہم ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہوئے. 2010 کے قریب انڈیا پاکستان سے آگے گزر گیا، اور مزید کچھ وقت گزرتا ہے 2020 کے قریب بنگلہ دیش بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پاکستان سے آگے گزر جاتا ہے. آج حال یہ ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم $1,751 ہے، جبکہ بھارت کی 2,694 اور بنگلہ دیش کی $2,593. یعنی کہ آج تک ہم 2000 کے فگر کو بھی ٹچ نہیں کر پائے، اور بنگلہ دیش اور انڈیا 2500 کے فگر سے بھی آگے جا چکے ہیں. اب یونائٹڈ نیشن کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے جو کہ پوری دنیا کے ممالک کو کیٹیگرائز کرتا ہے. اس کی بنیادی طور پر 4 کیٹیگریز ہیں، اور بیسکلی 3 چیزوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی کسی بھی ملک کی، دوسرا ایجوکیشن کو، اور تیسرا پر کیپٹا انکم کو. اب پاکستان اس میں چوتھی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ٹوٹل 4 کیٹیگری ہیں. پہلی کیٹیگری ہے ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ، دوسری ہائی، تیسری میڈیم، اور چوتھی لو ہیومن ڈیولپمنٹ. اب اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس پاکستان جو اتنی تیزی سے اس شعبے میں آگے جا رہا تھا اس میں ڈکلائن پر کیوں آیا؟ اس کے کچھ اعداد و شمار ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے ہیں. پہلے وہ خصوصی رپورٹ میں دیکھتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. کیا خوب کہا تھا جان ایلیا نے. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال لیا. کچھ ایسی صورتحال وطن عزیز پاکستان کی نظر آتی ہے، خاص طور پر معاشی میدان میں. کسی بھی ملک کی ترقی جانچنے کا ایک اہم پیمانہ فی کس سالانہ آمدن کا بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستانی شہریوں کو بے روزگاری، غربت کے علاوہ تعلیم اور صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے. قیام پاکستان کے وقت فی کس آمدن کا اندازہ $60 سے $85 فی کس تک لگایا گیا. 1960 تک ملک کی فی کس آمدن $91 تک پہنچ گئی تھی. 1960 سے 65 تک 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی کامیابی کے باعث پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری آئی اور فی کس آمدن $114 تک پہنچ گئی. 1970 تک قومی پر کیپٹا انکم $170 ہو چکی تھی. بھٹو دور میں 1975 تک ملک کی فی کس آمدن بڑھنے کی بجائے کم ہو کر $163 رہ گئی. اسی دور میں اگلے 5 سال میں فی کس آمدن ڈبل ہو کر $314 تک پہنچ گئی تھی. 1985 تک ضیاء الحق کی حکومت کے دوران پر کیپٹا انکم $360 تک پہنچ گئی. 1990 میں فی کس آمدن 390، 95 میں $504، جبکہ نئی صدی کے آغاز یعنی سال 2000 تک 726 ہو چکی تھی. مشرف دور میں 2008 تک $1243 ہو چکی تھی. زرداری حکومت کے دوران 2010 میں معیشت کا حجم سکڑا تو فی کس آمدن کم ہو کر $1171 رہ گئی. 2012 میں 1433 اور 2014 تک $1487 فی کس رہی. نون لیگ حکومت کے دوران فی کس آمدن 2015 میں 1609، 2017 میں 1723، جبکہ 2018 میں $1768 رہی. پی ٹی آئی دور میں 2019 میں پر کیپٹا انکم کم ہو کر 1578، 2020 میں $1458 رہ گئی. 2021 میں یہ بڑھ کر 1677، جبکہ 2022 میں 1767 ہو گئی. پی ڈی ایم حکومت کے ایک سال میں قومی فی کس آمدن کم ہو کر $1664 رہ گئی. 2024 میں فی کس آمدن 1817، جبکہ 2025 تا 26 میں $1901 رہی، یعنی تقریباً ماہانہ $44,000. آزادی کے پہلے سال یعنی 1947-48 میں پاکستان کی فی کس آمدن $85 تھی، جبکہ بھارت $60 پر تھا. 1960
1961 में पाकिस्तान की फी कस आमदनी $85 से बढ़कर $91 तक पहुंच चुकी थी, जबकि भारत की फी कस आमदनी $84.9 थी। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की फी कस आमदनी $50.2 थी, जबकि श्रीलंका की फी कस आमदनी $145.9 थी। 1970-71 तक पाकिस्तान $175 तक पहुंच चुका था, भारत $114.4, नेपाल $69.5, श्रीलंका ने $188.8 के साथ मामूली बढ़तरी हासिल कर ली थी। 1980-81 में पाकिस्तान ने $363 के साथ श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया था। श्रीलंका 292, इंडिया 271.1, जबकि नेपाल और बांग्लादेश $125.1 के साथ बराबर थे। 1990-91 में श्रीलंका $546.3 के साथ पहले, पाकिस्तान $424 के साथ दूसरे नंबर पर था, जबकि भारत $305.6 और बांग्लादेश $272.1 के साथ काफी पीछे थे। नेपाल 125.1 पॉइंट्स के साथ खित्ते में पीछे रह गया था। 21वीं सदी के आगाज यानी 2000 से 2001 में भी पाकिस्तान की $689 फीकस आमदनी भारत के $450.4 और बांग्लादेश के $394.7 से नुमाया तौर पर ज्यादा थी। सिर्फ श्रीलंका $803.3 के साथ पाकिस्तान से आगे थे। 2010-11 वो पहली दहाई नजर आती है जब पाकिस्तान मुकाबले में पीछे रहना शुरू हुआ। 2010-11 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत ने $1,445.5 के साथ तारीख में पहली बार पाकिस्तान को फीकस आमदनी में पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की फीकस आमदन इस साल $1,348 रही। इस दहाई में श्रीलंका की फीकस आमदनी एक बहुत बड़ी छलांग के साथ $3,225 तक पहुंच गई, जो खित्ते में सबसे ज्यादा थी। इसके बाद वतन अजीज फीकस आमदन के मामले में खित्ते भर में पीछे रह गया। 2020-21 में बांग्लादेश ने $2,482.8 के साथ न सिर्फ पाकिस्तान के $1,677 को बल्कि भारत की फीकस $2,239.6 की आमदन को भी पीछे छोड़ दिया। श्रीलंका $3,997 फीकस के साथ पूरे रीजन में आगे रहा। हत्ता के डिफॉल्ट जैसे बड़े झटके के बावजूद 2024-25 में श्रीलंका $4,515.6 के साथ खित्ते में सरे फहरिस्त रहा। भारत $2,694.7 और बांग्लादेश $2,593.4 के साथ मजबूत पोजीशन में हैं, जबकि पाकिस्तान $1,751 के साथ इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया है और इसकी फीकस आमदनी सिर्फ नेपाल के $1,447.3 से ज्यादा है। सर, क्या वजह बनी? 2010 तक हम क्यों इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और आज हमें क्या हुआ? जी, 2010 तक का अगर आप देखिए पीरियड, पाकिस्तान हमेशा जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ बबल्स आए हैं ऊपर जाने के, उसके जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं, रियल फैक्टर्स कम हैं। 90s में पाकिस्तान ने कुछ मार्केट बेस्ड ओपनिंग शुरू की, जिसमें हमने फिर प्राइवेट सेक्टर को सामने लाने की कोशिश की, बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन असल इम्पैक्ट हमें 9/11 के बाद आया, जिस वक्त हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए और एक फ्लो ऑफ कैपिटल से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुआ। उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ ऊपर जाना शुरू हो गई, पर कैपिटा इनकम ऊपर जाना शुरू हो गई। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ अकेली को जज करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो पर कैपिटा इनकम जो है वो इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं कर रही, सब में यकसा तरीके से डिवाइड नहीं हो रही, जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही, अमीर और गरीब का फर्क बढ़ा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रही है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर से कंजम्पशन हाउस होल्ड की गिर रही है, तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का और दिखाने का कोई लोगों की जिंदगी पे असर नहीं पड़ता है। सो पाकिस्तान के आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा रहा। हमने अपनी कैपेबिलिटी पॉलिसी मेकिंग की नहीं बनाई, ना पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने थिंक टैंक्स बनाए कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में इन्वेस्ट किया।
प्राइवेट सेक्टर को हम एक पेटनेज की नजर से चलाते रहे, उनको इंसेंटिव्स दे दे के कंपेटिटिवनेस गिरनी शुरू हो गई। और एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि बाकी एशिया उठना शुरू हो गया। ये जो हमारी इकोनॉमी को जाता है कि 60s 70s में बड़ी मजबूत थी, उसकी एक वजह यह थी कि बाकी एशिया ने अभी फिनोमिनल ग्रोथ की तरफ कदम नहीं रखा था। कंपटीशन बढ़ गया, ईस्ट एशिया आगे निकल गया, साउथ ईस्ट एशिया आगे निकल गया, चाइना और इंडिया आगे निकल गए। पाकिस्तान उसी स्टेटस को में फंसा रहा और हमारी एवरेज ग्रोथ अगर 30 बरस की देखें तो 3 से 4% के बैंड में रही ऑन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। आबादी बढ़ती चली गई और इन मिसमैनेज सूरत हाल की वजह से जो करंट चैलेंजेस दिखाई देते हैं हमें कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजम्पशन पावर फॉल हो रही है, लोग ट्रेड ऑफ्स कर रहे हैं घरों के अंदर कि आपने क्या बेसिक नेसेसिटीज़ छत पर बेसिक खाने पे खर्चना है कि हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चना है। ये एक ऐसे मुल्क में जहाँ पॉपुलेशन जवान नौजवानों की है, ये एक ख़तरनाक अशारिया दिखाई देता है। अच्छा हारून साहब, हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक तो डायरेक्ट लिंक इसका पाकिस्तान की आबादी से है। पाकिस्तान की आबादी 1947 में तकरीबन 3 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ती गई, इसको डायरेक्टली हम मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिया जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम का ये हाल हुआ। नहीं, पॉलिसी और गवर्नेंस के फेलियर को मुर्दे इल्ज़ाम दिया जाता है। हम लोग एक पुराना मॉडल है फरसूदा सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लानिंग का, हम उसमें फंस के रह गए हैं। हालांकि ये सेंट्रलाइज प्लानिंग सोवियत यूनियन के फॉल के बाद वैसी ख़त्म हो गई। 2014 में हिंदुस्तान ने अपना प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, सूबों को ऑटोनॉमी दी कि आप अपने प्लान्स बनाइए, लेकिन कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म मजबूत किया। किसी भी फेडरेशन में फेडरेशन और सूबे जब तक मिलके नहीं चल पाते इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट पे, वो फेडरेशन आगे चल ही नहीं सकती। सो गवर्नेंस का फेलियर यहाँ दिखाई देता है। पॉलिसी मेकिंग की कैपेबिलिटी एविडेंस बेस्ड कटिंग एज में हमने इन्वेस्ट नहीं किया, वो पॉलिसी फेलियर दिखाई देता है। सियासी फेलियर यह दिखाई देता है कि इलेक्शंस जो हैं उसमें वोटिंग जो आती है कंस्टिट्यूएंसी से, वहां पर ये जो इंडिकेटर हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि इन ए वे वोट्स को खरीदा जाता है। राइट। अच्छा, और हारून साहब, आपकी नज़र में भारत और बांग्लादेश का जैसे मैंने मुवाजना किया, क्या रीजंस वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उन्होंने अपनी किन किन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जिन पर हम नहीं दे सके? जी, इंडिया की एग्जांपल हमें लेनी चाहिए क्योंकि एक बड़ी मईशत है, बांग्लादेश की वॉलेटाइल है। इंडिया की जो मईशत थी वहां पर उन्होंने कोई 30 बरस पहले मनमोहन बांग्लादेश की बात तो हम इसलिए करते हैं ना कि हमसे ही वो आज़ाद होते हैं, आज 2500 प्लस कर जाते हैं और हम अभी 1700 के इर्द गिर्द हैं, तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है, इसलिए हम उसको। जी बिल्कुल है। जी मैं आता हूं दोनों पे, वेरी क्विक कमेंट। देखिए, इंडिया ने 90s में फैसला किया कि अब उन्होंने ये इंटरनेशनल इदारों के कर्ज पे जीने की बजाय उन्होंने एक रिफॉर्म का प्रोसेस ना सिर्फ चलाना है, और मनमोहन सिंह साहब ने सब पार्टियों को टेबल पे रखा। इनफैक्ट उस रिफॉर्म के प्रोसेस की, जिसको हम सियासी कॉस्ट ये कहते हैं, कि उनकी पार्टी वो इलेक्शन हार गई, लेकिन उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एलीट क्रिएट की इदारों में जो इस रिफॉर्म को आगे लेकर चलते रहे, और उन्होंने आईएमएफ को छोड़ दिया और उन्होंने इंटरनेशनल इदारों की रेसिपीज छोड़ के एक होम ग्रोन मॉडल दिया और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ को खोलना शुरू किया। ये सारे बड़े ग्रुप टाटाज एंड बिरलाज ये इस सेक्टर में फिर ग्रोथ की तरफ चल पड़े, और इंडिया क्योंकि उनके पास एक लेबर का एडवांटेज था और ग्लोबली पॉलिटिकली वो कनेक्टेड थे, तो उन्होंने नई मार्केट्स खोली और आईटी की एक्सपोर्ट और दूसरी एक्सपोर्ट्स को करना शुरू किया। उससे उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाई दी और वो खित्ते के अंदर दूसरी या तीसरी बड़ी मंडी बन के उभरा। बांग्लादेश का फर्क मॉडल है। बांग्लादेश के अंदर
पानी ज़्यादा है, आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ जगहों पर, वहाँ पर एजुकेशन का लेवल अच्छा है, ख़वातीन की वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन अच्छी है। बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी थी कि बीइंग ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, वो ईस्ट एशिया से सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट है थाईलैंड की, तो वो वहाँ पे इस ईस्ट एशिया में एक बूम आ रहा था। उन्होंने फैसला किया कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। मैं खुद उस वक्त वर्ल्ड बैंक में उस खत्ते पे काम करता था, मैं उनकी हुकूमत के साथ इंगेज रहा। मैंने हसीना वाजिद का मॉडल देखा कि उन्होंने सारी तवज्जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर कर दी और एक्सपोर्टर उन्होंने तरजीह बना दिया। और उस तरजीह बनाने से 2 गाड़ियां बांग्लादेश में गुजर सकती थी। बांग्लादेश में स्ट्राइक्स बहुत होती हैं, सो एवरी फ्राइडे 2 कार्स वर अलाउड नॉट टू बी स्टॉप, एक एम्बुलेंस और दूसरा जिसके ऊपर एक्सपोर्टर का स्टिकर था, तो एक सेक्टर को इज्जत दी गई। लेकिन वो रॉ मटेरियल के लिए बाकी ममालिक पे डिपेंडेंट थे, वो हमारे से धागा खरीदते रहे, कपड़ा खरीदते रहे, लेकिन वैल्यू एडेड में आ गए, हम बेसिक्स पे फंस के रह गए। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं हुकूमत में था तो चीन, हमारी एक एग्जीबिशन थी शंघाई में, तो चीन हमारा दोस्त, उन्होंने चीन के साथ हमें स्टॉल दिया। आई टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर कि आप देखिए, एक तरफ चीन का स्टॉल है जहां पर आप वैल्यू एडिशन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, स्पेस एज, हमारा स्टॉल है जिसमें हम कपास रख के बैठे हैं, आम रख के बैठे हैं, किन्नू रख के बैठे हैं, ग्रे क्लॉथ रख के बैठे हैं। ये सोचने की बात है कि हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमारी इकोनॉमी एक जगह रुक कर रहे। राइट। अच्छा अरुण साहब, आपने 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का जिक्र किया, इंडिया से रिलेटेड IMF का और बांग्लादेश से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स का। अब डू यू थिंक कि पाकिस्तान किसी ऐसे वक्त में या आने वाले कितने सालों में IMF से छुटकारा पा सकेगा या नहीं पा सकेगा? क्योंकि आज भी जो ये बजट पेश किया गया है इस दफ़ा का, 43% हमारे बजट का हिस्सा, चाहे वो अंदरूनी कर्जे हैं या बैरूनी कर्जे हैं, उनको रीपे करने की मद में और सूद की मद में जाना है। और फिर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से आधी हैं, उसमें भी हम बुरी तरह से मार खा रहे हैं। क्या रीज़न है इनको? ये पहली बात तो ये है कि दुनिया की, मैंने 16 ममालिक में काम किया, मईशत को स्टडी किया, कोई मईशत ऐसे कर्ज से नहीं बढ़ती जो आपके बिल पेमेंट के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता हो। अगर आपके पास कर्ज आता है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाया जाता है जिससे मईशत बढ़ती है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री होती है, फिर तो वो कर्ज अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर आप तनख्वाहें दे रहे हैं, पेंशन का बिल दे रहे हैं, सूद पे कर रहे हैं और कर्ज मजीद लेके कर रहे हैं, तो ये बहुत एक खतरनाक डेट स्ट्रेस्ड इकोनॉमी की निशानी है। अब आपका सवाल है कि इससे कैसे, देखिए पहली बात तो ये है कि इस सारी सूरत हाल से क्विकली निकलने का कोई पाकिस्तान के अंदर हल नहीं है। सियासी बयानात, पॉपुलिज्म अपनी जगह के जी आज हम ज़राअत से कर लेंगे, कल को मिनरल से कर लेंगे, तेल निकल आएगा, कुछ और हो जाएगा, ये इस तरह इकोनॉमीज नहीं चला करती आगे। हमें कुछ चीज़ों पे कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर हमने पहला कंसेंसस कि ये मुल्क जैसे हम चला रहे हैं मईशत को, अब ये ऐसे नहीं चलेगा। वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के जो बड़े थे, कार्नेगीज थे, कार्लाइल्स थे, फोर्ड्स थे, वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने फैसला किया कि जागीरदाराना निजाम अब नहीं चल सकता। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, जिसको हम रिकोनासा कहते हैं। यहां पर एक तो हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और सारी कंस्टिट्यूएंसीज के साथ फैसला करना है कि आपके मुल्क का कंपैरेटिव एडवांटेज है क्या, जिसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों के ऊपर बिल्ड नहीं करते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बिल्ड करते हैं, और अल्लाह ने हर मुल्क को स्ट्रेंथ्स दी हैं। जब आपने वो डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद आपने फैसला करना है कि सियासत को पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से इंसुलेट कैसे करना। वो मजबूत इदारों से आती है। ये नहीं कि एक वजीर आजम बदला, उसने आगे सारी पुरानी बंद की पॉलिसियां और अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। सो वी नीड पॉलिसी, सियासत का काम है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इंडिपेंडेंट इदारों का काम है। हमें इदारों के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत लानी पड़ेगी, लोग लाने पड़ेंगे
जो मार्केट्स का और दुनिया का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं। और उन लोगों को कम वक्त में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, टारगेट्स देने पड़ेंगे, ये नहीं कि हुकूमत बदली और अपना बंदा लगा दिया गया। सो सेकेंड पार्ट इज मेरिटोक्रेसी इन इंस्टीट्यूशंस एंड डेलीगेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी इतना सेंट्रलाइज्ड है, जब मैं कैबिनेट में बैठता था आई वाज हॉरिफाइड। हर एमओयू वेट होने कैबिनेट के पास आता था, रेलवे के जनरल मैनेजर की अपॉइंटमेंट को वजीर आजम अप्रूव करते थे। वी नीड मैसिव डीरेगुलेशन और कैबिनेट को पॉलिसीज बनाने दे, इदारों को इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉलिसीज का ना बनना और अगर बन जाएं तो फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन का होना है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तज़िया इस सारे इशू पर हमारे साथ शेयर किया। जनाब अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और इस ब्रेक के बाद इस खुसूसी ट्रांसमिशन का जो सिलसिला वो जारी रहेगा। स्टे विद अस। दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब आज हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, यानी कि उस सितम ज़रीफ़ी की जिसमें एक वक्त में हम पूरे खित्ते में सबसे आगे थे और आज सबसे पीछे रह गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिदा अफजारा साहिबा मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। सलमान नकवी साहब मौजूद हैं, ये भी माहिर मईशत हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब सबसे पहले आता हूँ, बताइएगा आपकी नज़र में क्या रीज़न्स हैं। 2010 तक तो पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश और दीगर ममालिक भी हमसे आगे दिखाई दे रहे हैं पर कैपिटा इनकम में। जी असल में इसका ताल्लुक जो है ये जो आपका पर कैपिटा इनकम है, ये कोई आइसोलेशन में इसको नहीं देखा जाता है। इसका ताल्लुक ओवरऑल इकोनॉमी की रेट ऑफ ग्रोथ से है कि आपकी जीडीपी जो है वो किस हद तक मतलब उसकी क्या शरह नमू है। अच्छा, अब आप देखिए कि आपने कुछ फिगर्स पेश की थी, मुझे नहीं पता कि आपने किस बेसिस पे ये कहा कि 2010 और 11 से ये कम होना शुरू हुई, उससे पहले बहुत अच्छी जा रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि कम होना शुरू हुई, मैंने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान से आगे जाना शुरू हो गया था 2010-11 में, ये कहा था जी। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि पाकिस्तान का जब पाकिस्तान ने डेवलपमेंट शुरू किया, जब रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई 60 की दिहाई से लेट 1950s और फिर 60s तक, तो 60s के मिड तक बहुत तेजी से पाकिस्तान ने उस रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ी, जीडीपी रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ बढ़ी और सारे और जो इंडिकेटर्स जिनकी आप बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि जी। और वो सारे भी बहुत अच्छे ठीक जा रहे थे। और ये मिड 60s तक रहा। मिड 60s में स्टैग्नेशन शुरू हुई, मतलब थोड़ा सा वो आ गया और फिर उसके बाद से रेट ऑफ ग्रोथ और पूरे और भी इंडिकेटर्स इकोनॉमी के गिरना शुरू हुए। और फिर 70 की दिहाई में जब हम आते तो उस वक्त जब नेशनलाइजेशन शुरू हुई तो उससे फिर रेट ऑफ ग्रोथ और मुतासिर हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए और ये सिलसिला चलता रहा। मगर उसके बावजूद भी 80 की दिहाई में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था 6.1%, जो कि इतना ज्यादा नहीं था जो 60 की दिहाई में था। फिर आप देखिए कि 90 की दिहाई में फिर हमारे यहाँ 88 में फिर जमहूरी हुकूमतें आई, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक के बाद एक आती थी और ये इन सब ने जाके IMF से कर्जे लेना शुरू कर दिए और ये बुनियाद पड़ी है पाकिस्तान के जो ज़वाल आया है। उसकी ये वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने एक के बाद एक आता था और वो उस वक्त IMF से कर्जे लेते थे और इसलिए 90 की जो दिहाई थी उसमें पाकिस्तान की शरह नमूद बहुत कम होके 4.6% थी। हालांकि अब आप देखिए, अब आप मौजूदा दौर से जब मैं इसका मुआवजा करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। और इसी तरह 90 की दिहाई में हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कम हुई, उसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी भी कम हुई, जाहिर है उसकी वजह से गुर्बत बहुत बढ़ी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो एस्टिमेट दिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 50% हो गई 90 की दिहाई में और अंदरूनी सिंध में 85% या 86% हो गई। और इसी तरह
ہمارے تعلیم سے بالکل خرچہ ختم ہو گیا, ہماری صحت سے بالکل ختم ہو گیا, اور تعلیم اور صحت وہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں جو غریب لوگ ان کو کنزیوم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے غربت میں اور اضافہ ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2000 کی دہائی میں تھوڑا سا بہتر ہوا, مگر اب پھر گورنمنٹ آئیں, انہوں نے پھر IMF سے قرضے لینا شروع کیے بڑے پیمانے پہ, 2018 میں بھی 2024 میں بھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت کو ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہے پاکستان کو IMF کے پاس لے جانے کا, یہ کون کرتا ہے؟ یہ جنرل پیٹریس نے کیا تھا 2008 میں. اس سے پہلے بھی امریکہ نے یہ فیصلے کیے ہیں. ہمارے جو عام اور اکنامکس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک ماہر معاشیات نہیں کرتے ہیں. ہمارے ماہر معاشیات کو خاص طور پہ جو پاکستان کے مفادات کا سوچتے ہیں اور اس کے لیے بولتے ہیں لکھتے ہیں, ان کو بالکل ایک طرف سے بٹھا دیا جاتا ہے, بالکل مارجنلائز کر کے. اور جو امریکن جو حکمران ہیں انہوں نے, جنرل پیٹریس نے 2008 میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو IMF کے پاس لے جایا جائے گا. اور پھر 2024 میں جو بائیڈن نے کہا مئی 2024 میں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پاکستان IMF سے کر لے بات چیت. پھر جب نہیں ہوئی بات چیت شروع, پھر انہوں نے 6 مئی 2024 کو پھر کہا کہ پاکستان اور IMF کو چاہیے کہ اپنا کوئی بات چیت کر لیں. اور اس کے آپ دیکھیے کہ 2018 میں بھی اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے بھی IMF کے پاس گئے, پھر 2024 میں بھی گئے, کیونکہ کسی کو پاکستان کی معیشت سے میرے خیال میں کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہے, کوئی زیادہ ان کو یہ نہیں ہے کہ اس کو معیشت کو حالات بہتر کرنا ہے. ہر ایک اپنی زندگی میں عیش کر رہا ہے. حکمراں ہیں IMF کے باوجود اس کے کہ ان کی آسٹیرٹی ہے, سو کالڈ آسٹیرٹی, مگر اس کے باوجود حکمران اپنے شاہی طرز زندگی گزار رہے ہیں. سارے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں. ہماری جو بیوروکریسی کے اپر طبقہ ہے وہ بہت انجوائے کر رہا ہے. صرف جو آسٹیرٹی ہے اس کا لاگو ہوتی ہے غریب طبقے پہ اور مڈل کلاس پہ. اور آپ دیکھیں جب 2018 سے جب پاکستان دوبارہ گیا اور 24 میں یہ جو دور تھا یہ 90 کی دہائی سے بھی بدتر دور تھا. اس میں مطلب اس میں غربت 90 کی دہائی سے بھی زیادہ ہو گئی, مگر ADB نے کوئی ایسٹیمیٹ نہیں کیے, اس لیے ہم کوئی فگرز نہیں دے سکتے. مگر غربت اور زیادہ ہو گئی, اور غربت اور زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں فوڈ انفلیشن بھی شامل ہو گیا. 90 کی دہائی میں فوڈ انفلیشن نہیں تھا, مگر اب کیونکہ پاکستان کی حکومت نے ویسٹرن کیمیکل کمپنیز کے لیے انہوں نے GMO کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اجازت دے دی ہے, اس لیے پاکستان کے کھانے پینے کا بھی بالکل تباہ ہو گیا ہے. اور یقیناً یہ ریزن ہے. سلمان نقوی صاحب, جس طرح ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں, خاص طور پر ایک تو IMF کا انہوں نے ذکر کیا, کیا ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں؟ اگر ایک اکانومسٹ کو اس بات کا پتہ ہے تو جو ہمارے وزراء ہیں, خاص طور پر جو وزیر خزانہ تاریخ میں جتنے بھی رہے ہیں, کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اور اگر اس بات کا علم ہے تو پھر بھی یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں, بنیادی مسائل کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں تو کافی ڈسکس ہو چکی ہیں, اس طرف میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا. جی پلیز. اس وقت پر کیپٹا انکم کا براہ راست تعلق GDP سے ہوتا ہے, اور GDP مینس ہماری آمدنی, آسان الفاظ. جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اتنی پر کیپٹا انکم زیادہ ہوگی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ پر کیپٹا انکم پاکستان میں ہے, لیکن یہ پاکستان کے لحاظ سے تو ہائیسٹ ہو سکتی ہے $1900 پر ایئر, لیکن انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں تقریباً $2900 اور $2800 ہے, اور چائنا میں $15,000 ہے, اور لگزمبرگ میں $1.5 لاکھ ہے. بہت فرق ہے, ہم بہت پیچھے ہیں. بنیادی چیز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, ہمارے جب تک معیشت میں بنیادی ریفارمز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, مثلاً ایگریکلچر ٹیکس, ریٹیلر ٹیکس, ہماری
GDP کا 45% ایگریکلچر اور ریٹیلرز پر منحصر ہے. پچھلے 4 سال میں ان کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہارڈلی 40 ارب روپے ہے، جبکہ ٹیکس لیے کہاں سے جاتا ہے؟ سیلریڈ کلاس سے یا انڈسٹریز سے. سیلریڈ کلاس نے تقریباً 1200 ارب روپے کا 4 سال میں ٹیکس دیا ہے، جبکہ ایگریکلچر اور ریٹیلرز نے ٹوٹل 40 ارب، اور اس کے علاوہ انڈسٹری پر تقریباً 50 سے 60% کے درمیان سپر ٹیکس ملا کے ٹیکس لاگو ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ ملک جہاں پہ انڈسٹری جو بنیادی طور پہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے، پرسنل انکم جس سے جنریٹ ہوتی ہے، اگر 50 سے 60% ٹیکس دے، مہنگی بجلی خریدے، اور اتنے اس ایٹماسفیئر میں سیکیورٹی انسیکیورڈ ایٹماسفیئر میں وہ کتنی جنریشن، کتنا پروفٹ وہ بنا سکتی ہے، اور کتنا پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے، کتنا پر کیپٹا انکم پہ اس کا اثر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بنیادی مسئلہ، ہمارا ملک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے، جیسا کہ میڈم نے بھی کہا. نیشنلائزیشن کے بعد اور اس کے علاوہ ڈالر فریز کرے گئے تھے 1998 میں، 2 واقعات کے بعد پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آتی، اور فارن انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں انڈسٹری لگائیں گے، اور بڑا اچھا اسکوپ موجود ہے پاکستان میں، بہت پوٹینشیل ہے ایگریکلچر میں، منرلز میں، مائنز میں، بہت سارے ایسے پاکستان میں اپرچونٹیز موجود ہیں کہ جہاں انڈسٹریلائزیشن بہت بڑی ہو سکتی ہے، بڑا ویکیوم ہے، لیکن نہیں لگاتے. انہیں خوف ہے کہ کہیں اگر نیشنلائزیشن ہو گئی یا پالیسیز چینج ہو گئی حکومت کی، جو زیادہ تر ایڈ ہاک ازم پر منحصر ہوتی ہے، یا سیاست بچائی جاتی ہے، ریاست کو نہیں بچایا جاتا، تو وہ خوف کی وجہ سے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پرسنل انکم ڈومیسٹک 14% ہے، جو لویسٹ ہے اس پورے ریجن میں. انڈیا بنگلہ دیش میں 30% ہے، چائنا میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. چونکہ جب لوکل سیونگ ہماری صرف 14% ہے، اور تو لوکل کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور جب لوکل انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے تو فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے. اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، انڈسٹریلائزیشن کا عمل ہو، انڈسٹریاں لگے، ہمارے یہاں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر کام ہو، ہیومن کیپٹل ہمارے یہاں اویلیبل ہے، اس کو اسکلڈ کرا جائے، اس کو ایکسپورٹ کرا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک لانگ رن اسٹریٹجی اور پالیسی کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے اس طرف کوئی، ان تمام باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کی طرف نہ موجودہ جو پچھلا بجٹ گیا ہے، نہ اس پہ کوئی ہم نے ایسی کوئی توجہ نظر آئی ہے، نہ اس کی طرف کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر آئی. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، پر کیپٹا انکم پاکستان کی بڑھنا کافی مشکل ہے. ہمارے ہاں جی ڈی پی گروتھ جو پچھلے سال کی حکومت نے 3.7 بتائی، وہ مارچ کے مہینے تک کی ہے، جبکہ اپریل اور مئی کا مہینہ، کیونکہ مارچ میں 9 مہینے ہو جاتے ہیں، تو اپریل اور مئی کا مہینہ اس میں شامل نہیں کرا گیا، جس میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا تھا، پیٹرول پرائسز بھی بڑھے تھے. تو میں سمجھتا ہوں GDP اور کم ہو جاتی اور پر کیپٹا انکم مزید کم ہو جاتی. جو اس وقت $1900 کا جو ایک فگر حکومت کی طرف سے آیا، یہ مزید کم ہو سکتا تھا. تو بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے، بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو معیشت کے فیصلے ہیں وہ تھرو پولیٹیکل پلیٹ فارم ہوتے ہیں. بدقسمتی سے وہ اکنامک پلیٹ فارم سے ہو، معیشت کی بہتری کیسے ہو، سب سے پہلے اولین ترجیح معیشت کو دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم اپنے پر کیپٹا انکم بھی بڑھا سکتے ہیں، بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہمارے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. کچھ سیکٹرز میں نے ہائی لائٹ کرے ہیں، مثلا ایگریکلچر میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بہت بڑی مقدار پانی کی سمندر میں پھینک دی جاتی ہے، اس کو سٹور کرنے کا سسٹم کرا جائے، سرکولر ڈیٹ پر قابو پایا جائے. اور ہمارے ہاں منرلز ہیں، مائنز ہیں، ہمارے یہاں ٹورزم ہے، ہمارے ہاں جو ہے میری ٹائم سیکیورٹیز، لیکن یہ بہت سارے شعبے ہیں جن کی طرف ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح آپ نے بات کی پہلا تو یہ کہ پر کیپٹا انکم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ کسی ملک کی اکانومی کیسی ہے. سو موونگ فارورڈ، آپ نے IMF کی بات کی، تو یہ گورنمنٹ تو ویسے ذکر کرتی ہے یا کہتی ہے کہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیسے اور کون ہمیں نکالے گا اس چنگل سے جس کی آپ نے نشاندہی کی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے سوال؟ جی ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ، آپ کے ساتھ آپ سے یہ سوال کیا ہے. جی دیکھیے، IMF حکومت اپنے چوکیاں جاتی ہے، اس کے یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کو IMF کی کچھ بہت ضرورت ہے. میں نے
3 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिव दिया था कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि IMF से कर्जा लेने के बजाय ये ऑल्टरनेटिव है, इस पे अमल दरामद हो। मगर उस ऑल्टरनेटिव में ये है कि ये नहीं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मतलब इन शॉर्ट में ये कहूँगी कि हमारी जो चादर है उसके मुताबिक हम अपने पैर फैलाएं। मगर हुकूमत की ये तरजीह नहीं है। हुकूमत चाहती है कि अपने वो जिस तरह वो रह रही है ऐशो इश्तराक में, और जिस तरह दौलतमंद लोगों के लिए महंगे महंगे फल और सब्जियां इंपोर्ट कर रहे हैं, और चीज और चॉकलेट और कॉस्मेटिक, ये हमारा तर्ज जिंदगी बन गया है और हम ये सब चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर उसके लिए हमारे पास पैसा, डॉलर्स नहीं है, तो फिर हम कहते हैं हम IMF से कर्जे लेके ये पैसे अदा कर देंगे, मगर हम अपना तर्ज जिंदगी यही रखेंगे। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में ये कहा है कि हम अपनी जितने हमारे वो है रिसोर्सेज उनके मुताबिक एक तो वो करें। दूसरी ये है, देखिए कि पाकिस्तान ये नहीं है कि कोई गरीब मुल्क है, हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत सी, मिसाल के तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान के पास बहुत से स्ट्रेटेजिक वो हैं, मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के पास बहुत से वो हैं। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान ने अपने रास्ते दिए थे नेटो को, तो बिल्कुल ही कौड़ियों के मोल दे दिए थे, और या तो बिल्कुल ही जरा से थोड़े से पैसों में। मगर पाकिस्तान के साथ ये मसला है कि पाकिस्तान अभी तक नौ आबादियाती दौर में गुजर बसर कर रहा है। पाकिस्तान की जो कुदरती वसाइल हैं उनसे पाकिस्तान के लोग मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको रॉ फॉर्म में खोद के दे दिया जाता है, हमारे दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी। आप देखिए कि हमारे जो भी कुदरती वसाइल हैं उसमें अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो उससे मईशत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई खुशहाली नहीं आएगी। सिर्फ जो इंसान कुछ कमा लेगा वो है जो खोद रहा होगा जमीन और खोद के निकाल रहा होगा, मतलब जो डिगिंग कर रहा होगा या इस किस्म से। जरूरत इस चीज की है कि आप वैल्यू एडिशन करें और अपने कुदरती वसाइल को इंडस्ट्रियल केमिकल्स में और मैन्युफैक्चर्ड गुड में तब्दील करें, मगर वो कोई नहीं कर रहा है। तो अमीर मुल्कों की कंपनीज को हमारे कुदरती वसाइल दिए जा रहे हैं, वो इनको रॉ फॉर्म में खोद के ले जा रहे हैं और अपने मुल्कों में जाके इन पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी हमारे और भी वो है रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास ये जो है खासा के ये जो है रॉक सॉल्ट, ये भी हम अपनी स्लैब्स में ले जा रहे हैं और हिंदुस्तान उनको ले जा रहा है और उसको वो पैकेज करता है और उस पर लिख देता है कि प्राइड ऑफ इंडिया, और ये कह के बेचता है और हम उसको स्लैब के तौर में। तो ये सिर्फ उन मुल्कों के साथ होता है जो मुल्क नहीं होते, जो नौबादियाती कॉलोनीज होते हैं। तो हम ये हमें सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। सलमान साहब, अगर आप कोई एक फिक्स हमें दें कि ये एक फिक्स है जो फौरी तौर पे जरूरी है, वो क्या होगा? आई डोंट नो मेरी जी आवाज क्लियर है। जी आवाज क्लियर है। बहुत सारी चीजें बता गया था एक्सलो में। देखिए, मैंने बताया था कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। पहले तो वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन बुनियादी शर्त है। जब तक आप वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी हमारे यहाँ 18वीं तरमीम हुई थी जिसके तहत 58% वसाइल सूबों में तकसीम कर दिए जाते हैं, 42% पे वफाक को दिए जाते हैं, जिस पे वफाक ने डिफेंस एक्सपेंडिचर, कर्ज़े उतारना और तमाम डेवलपमेंट और सारी चीज़ों को करना होता है जो वो नहीं कर पाता है और वो मजबूरन फिर कर्ज़े लेने की तरफ चले जाते हैं। तो लिहाजा पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, बुनियादी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर टैक्स, रिटेलर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ सेविंग रेशो हमारा 14% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना होने के बराबर है जब तक। राइट, यानी कि ये तमाम तर सेक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है और पूरा स्ट्रक्चर है जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा अफजारा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। सलमान नकवी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे और आज की हमने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा थी, आज खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत इतनी कम क्यों है और इसको बेहतर करने के हमारे पास क्या फिक्स हैं। आज की इस ट्रांसमिशन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।